ترجمہ بھی ذرا تھوڑا سا لوگوں کو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک، جو متقین کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک صفت ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، ٹھیک ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی آپ کے بعد قیامت ہے، درمیان میں نبی نہیں۔ ساتھ میں نے حدیث سنائی صحیح البخاری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا انا والساعۃ، میں اور یہ درمیان والی یہ شہادت اور درمیان والی انگلی جو ہے کہاتین، جس طرح اس کے درمیان کوئی چیز نہیں اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ویسے دیگر روایت بہت زیادہ کہ لا نبی آبادی اور بھی بہت زیادہ روایت اور آیات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو سوال میرا جو آپ سے اصل میرا بنیاد جو دعویٰ چل رہا تھا، آپ کا دعویٰ کہ مرزا غلام قادیانی علیہ صاحب نبی ہیں، تو میں نے کہا جی ایک آیت اور ایک حدیث کا مطالبہ میں نے کیا تھا، وہ پڑھیں تو بات آگے جاری کریں۔ پھر یہ جو آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت پڑھی ہے اور ساتھ میں آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا مطلب ہوا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور سے پہلے کے نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پھر رکھ دیتا ہوں اس کے مقابلے میں، آپ اس میں دیکھ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا بینی و بینہ نبی، لیسا بینی و بینہ نبی انہ نازل۔ تو اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ترجمہ کریں نا، آپ کو بھی آتا ہے ماشاء اللہ، لوگوں کے لیے کر لیتے میری طرف سے نا بات کریں آپ۔ میں کروں گا، جب میں کروں گا تو میں کروں گا سر، میں کروں گا آپ کریں۔ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پہلے شروع ہوتی ہے، آپ نے فرمایا تمام انبیاء علیہ بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، میرے اور آنے والے عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس آنے والے عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ نازل ہوں گے۔ حضور تو یہ فرما رہے، آپ ہمیں الگ کہانی سنا رہے ہیں۔ نہیں کوئی الگ کہانی نہیں، آپ کا ویسے ذہن کہیں اور گیا ہوا ہے، بات وہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں بھی وہی کر رہا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ حضور کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان واقعہ نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، اس کے بعد قیامت ہے، بات ختم، نازل ہوئے کون سی بات ہے؟ نہیں حضرت عیسیٰ جو بعد میں آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ وہ محترم وہ تو کل بات ہو گئی نا کہ انہوں نے آنا ہے شریعت اسلامیہ کے لیے، وہ نبی علیہ الصلوۃ اجازت دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کو قرآن کی آیت نا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی بن کے اللہ ان کو نازل کرے گا، وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے نا، اس کو آپ چھوڑیں۔ نہیں ٹاپک تو سارے ملتے جلتے ہیں نا، جو نبی نہیں، کوئی ملتا جلتا نہیں، کوئی ملتا جلتا نہیں محترم۔ آپ پیدا وہ نازل حدیث پڑھ رہے ہیں نازل ہونے کی، مرزا صاحب نازل ہوئے ہیں، اچھا کیسی عجیب بات ہے۔ مسئلہ صرف نازل کا رہ گیا؟ نہیں مسئلہ نبوت کا رہ گیا کہ مرزا صاحب نبی ہیں، ایک آیت حدیث۔ اب نازل کا مسئلہ حل کر دوں پہلے قرآن سے ہی؟ نہیں پہلے مرزا صاحب کا مسئلہ حل کریں۔ نہیں اصل مقصد یہ ہے کہ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ نبی آ بھی سکتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ تقریباً 75% مان گئے ہیں کہ حضور کے بعد ایک نبی ہے۔ 1% بھی نہیں، فرق 1% بھی نہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، وہ حدیث نازل ہونے کی پڑھی ہے آپ نے بھائی؟ ہاں ہے نا، نازل تو ہونا ہے نا ایک نے حضور کے بعد۔ او محترم وہ نازل ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو آگے پھیلانے کے لیے آنا، وہ تو ساری دنیا مانتی ہے۔ بس ٹھیک ہے، نبی تو نہیں، اور نبی تو ہو بھائی نئے سرے سے، کیسی عجیب مذاق والی بات ہے۔ نبی تو ہے نا، وہ نبی پہلے سے ہیں، پہلے سے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ اب جب آ رہے ہیں تو نبی ہے نا، اب جب آ رہے ہیں نبی ہیں کیا؟ اچھا شریعت لے کے آ رہے ہیں، اب جب نزول فرما رہے ہیں، ہاں جی، وہ جب نازل ہوں گے پھر نبی داؤد کے الفاظ ہیں روایت کے، وہ شریعت اسلامیہ کی اشاعت کے لیے آ رہے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں نبی ہے، نیا نبی کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں نبی ہیں وہ اچھا نبوت سن تو نہیں جانی؟ ہاں نبی ہے نا۔ تو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک حدیث سنانے لگے تھے جو آپ نے نہیں سنائی، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، لا نبی آبادی میں نہیں آتے؟ مرزا صاحب آتے ہیں، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا، پہلے تو میری بات سنیں۔ اصل شور آپ کا نبی مرزا صاحب کو نبی ماننا پہلا موقع تھا کہ بعد کا؟
हमारा बाद का है, पहले आपका अकीदा है कि हजरत ईसा को अल्लाह ने अच्छा, आपका आसमान मौकफ पर नहीं मिर्जा उठाया था है। नबी, सुने आपका नहीं मौकफ? सुने मेरी बात सुने, पहले आपका मौकफ है, आपने कहा जी पहले कि अल्लाह आपका ताला नहीं। ने एक नबी को आसमान पर उठाया और फिर नीचे खत्म नबूवत कर दी, और फिर आप कहा उसकी कि जो तुमसे पहले नाजिल हुआ और जो तुमसे बाद नाजिल हुआ उस पर ईमान लाओ। मैं कहता हूँ मोहतरम, इसमें पूरी बात करूंगा। पहले मिर्जा गुलाम कादियानी अलैहि साहब को जो नबी आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उन पे एक आयत हदीस पढ़े ना, फिर इसकी तरफ आ जाएंगे। वो आपका हाँ, मेरा नहीं, बात पहले चल रही ये है। मामला, अगर ये मामला हल हो जाता है, मेरी बात सुने बोल साहब, नहीं अगर नहीं नहीं, ये इसका मामला, तल्लक ही नहीं, सुन तो ले, तलक कोई है ना, तल्लक नहीं इसका, अगर ये कोई मामला तल्लक आप नहीं। सुन तो लेना, अगर ये मामला आप हल कर देते हैं अभी, अगर क्या? आप ये साबित कर देते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ही आना है और आप उनका आना मान गए हैं, हजूर के बाद एक नबी का आना मान गए हैं, तो फिर मिर्जा साहब तो बाय डिफॉल्ट, फिर उनको तो गलत समझना पड़ेगा, उन्होंने खुद लिखा है, मैं क्यों कहूँ उनको, फिर तो बाय क्या क्या डिफॉल्ट क्या गलत है। क्या लिखा है? अगर आप ये साबित कर देते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमान पर उठाए गए और उन्होंने ही आना है, तो मिर्जा साहब नीचे जमीन पर फिर गलत साबित होते हैं, ये आप तो साबित ये कर बात, दें। अच्छा 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 अच्छा, चलें मैं आपके ये फिर इस तरह करना और है। आपकी तसल्ली के लिए, अच्छा आपकी तसल्ली ये बताएं कि मिर्जा साहब की ये बात आपके इल्म में है कि नहीं? उनका भी दावा था कि उन्होंने वापस आना है। मिर्जा ये साहब तहरीरों की किताब से दूं आपको? हो सकता है लिखी हो, इसमें क्या हर्ज की बात ना है। ना, हो सकता क्यों है? अच्छा अच्छा, हो सकता है हो, लेकिन इसका इस बात नहीं से हो। क्या ताल्लुक मौलवी साहब, और इस बात से क्या ताल्लुक? अच्छा तल्लक वो कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा हैं और उन्हें वापस अच्छा। आना है, जमी आफाक में इस्लाम को फैलाना है, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर झूठे हुए ठीक ना है। आपके नजदीक तो मिर्जा अच्छा, साहब। अब मुझे बताएं कि मैं अगर मिर्जा साहब की किताब से आपको दिखा दूं कि इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं, तो फिर अच्छा, मान मैं लेंगे दिखा उनकी दूं बात? कि वो कहते हैं कि वो आसमान पे जिंदा वापस आना, तो फिर अच्छा, ये तो आपका अकीदा है ना। देखें, नहीं अगर नहीं, मैं, वो मिर्जा साहब की बात है, सुने सुने मेरा ना, अकीदा क्यों है? इसका जवाब देने दे मुझे, इसका जवाब देने दे। देखिए, ये शोर किसकी तरफ है यार? ओ भाई, अपना आपकी अली, तरफ। नहीं, ये अली की तरफ है, ये आपका जो बंदा आया है, या नीचे वाला बंदा कौन है ये? यार अपना माइक तो म्यूट करो ना। अच्छा, बात सुने जी, अगर तो मिर्जा साहब का अकीदा वफात मसीह का मैं साबित करना मेरी जिम्मेदारी है, आपसे हजरत ईसा तो आसमान की मिर्जा तरफ साहब जाते से हैं, हयाते ईसा का साबित करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपसे कुरान से नहीं होता आपसे? यार ये कौन है? हाँ, आप छोड़े, आप घर, अच्छा आप घर से क्यों भागते हैं? मैं हैरान हूँ। ये जो कुरान है किसका घर है? अच्छा ये, अच्छा मुझे आप और बताएं, मिर्जा साहब अफजल हैं कि नबी अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलों से भी अफजल हैं? काफतल हैं? लिन्नास, काफतल लिन्नास। अच्छा, आप मिर्जा साहब अफजल हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं? अपनी अपनी, मुझे तो लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आने वाला मसीह है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए, तमाम दुनिया के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजे गए, उनकी उम्मत में आने वाला जो है वो ज्यादा अफजल होना चाहिए, क्योंकि हजूर की वजह से, हजूर की मुमासलत से होना चाहिए। हजूर ने फरमाया, आपके बारे में भी, उलमा के बारे में फरमाया कि आप बनी इसराइल के जो अंबिया हैं उनके बराबर हैं, हजूर ने ये फरमाया हदीस में, आपके मुतालिक भी। अब तो मेरे आप उलमा, छोड़े, जो मैं बात कर उसका जवाब दें मुझे कि उसका मिर्जा जवाब दे साहब दिया, अफजल हैं कि दे नबी दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? दे दिया उसका जवाब कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आने वाला मसीह इब्ने मरियम, जो कि हम मिर्जा साहब को मानते हैं, वो यकीनन अफजल होगा, क्योंकि रसूल पाक यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मिर्जा साहब नऊज बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हैं? मैं कह रहा हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। अस्तगफिरुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने मिर्जा साहब का नाम लिया तो हदीस पढ़ दे, बात खत्म हो जाती है। भाई मैं कह रहा हूं कि आप जो अभी बात पीछे चला रहे थे, उधर से आप आगे, मैंने आपको 3 वो साल जवाब दे बात दिया। जो पीछे चलाई है वो मिर्जा साहब की नबूवत में एक आयत एक हदीस, मेरी वो बात है, अच्छा, उसमें आप पढ़े मुझे आप। मुझे मुझे बताएं कि देखें, आप कह रहे हैं कि नबूवत बंद है, फिर आप एक नबी का आना भी मान रहे हैं, तो पहले तो उस नबी का बताएं ना हमें, हजरत तो ईसा का मैं बताएं कहता ना हूँ सर, वो कहाँ मोहतरम, है, जिसको जिस कहाँ से शख्सियत आना को है? आपने नबी मानना है हाँ, उसका आयत कुरान हदीस से साबित तो करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाँ जो खत्म नबूवत का आपका अकीदा है, मिर्जा साहब के जी बगैर जी, साबित होता है? मिर्जा साहब के बगैर साबित होता है? नहीं समझ, क्या सवाल किया आपने? ये जो खत्म नबूवत का आपका अकीदा है, या हजरत ईसा की हयात का अकीदा है, ये मिर्जा जी साहब जी, के अलावा आपका हाल होता है कहीं से? ये पूरी देखा है? पूरी उम्मत का इज्मा है, हाल ही हाल है। कहाँ पे है? वो कुरान हदीस बड़ी पड़ी है इस बात पे।
تو بتائیں نا پھر قرآن سے کہ حضرت عیسیٰ جو آپ زندہ نے ہیں. دعویٰ کیا ہے بے بنیاد، اس کی دلیل تو دے دینا، یا پھر مانے کہ وہ جھوٹے ہیں تو بات شروع نہیں کرتے ہیں نہیں، وہ بات مرزا یہ صاحب ہے، جھوٹے ہیں. بات سنیں. اب دو ہاں، موقف ہیں، ایک موقف ایک دیکھیں سنیں، ایک میں بتا رہا موقف. ہوں، یہ سن تو لینا، ابھی سنتے لیں مولوی صاحب. دو موقف آئے سامنے، ایک آپ کا ہے ایک میرا ہے. میں سچا مانتا ہوں، آپ جھوٹا مانتے ہیں. آپ کے پاس جو وجہ ہے جھوٹا ماننے کی اس کا آپ بتا دیں. آپ کے ہیں؟ پاس وجہ جھوٹا ماننے کی ہے کہ حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ حضور کے بعد ایک نبی نے آنا ہے. وہ ہمارا بھی مرزا یہی صاحب دعویٰ آئے ہے. ہیں. ہاں، ہمارے نزدیک وہ مرزا صاحب ہے، کیونکہ ایک آپ آیت حدیث پڑھیں، ایک اچھا آیت چپ حدیث کریں، سنائے، بات بات آگے تو چلائیں. سنیں نا یار. کس آیت سے آپ حضرت جن حدیثوں سے آپ حضرت عیسیٰ کا آنا مان رہے ہو انہی سے ہم بھی مانتے ہیں. استغفر اللہ، میں کہتا ہوں آپ نے ایک اگر آیت حدیث میں نے مانگی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہی نہیں اچھا ہو رہی. اچھا اگر میں کہوں آپ کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن ہے، یہ جو پہلے قبل میں آ چکا ہے، یہی ہے، اس پر ہی مرزا صاحب عمل کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو بھی نبی مان لیں. کیونکہ آپ نے دلیل حضرت عیسیٰ کے لیے یہی رکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو امت محمدیہ پر قرآن کریم اور حدیثوں پر عمل کریں گے. اس کا ثبوت میں اچھا، آپ سے لوں گا ابھی. تو اس لیے کیا مرزا وہ صاحب کو بھی ہو مان لیں آپ. عمل؟ میں کہتا ہوں وہ جس مضمون کی طرف آپ چور دروازے، میں کل بھی یہ چور دروازہ کہہ رہا تھا، چور نہیں آج ہے بھی یہ، کہہ رہا چور ہوں. نہیں ہے. یہاں آپ سے بھاگ رہے یہاں ہیں، سے تو آپ بھائی بھاگ رہے ہیں کہ نہ علیہ کہ السلام، آیت ہے ماشاء نہ اللہ، کوئی حدیث ہے. علیہ السلام. چلے وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. پہلے تو سر آپ نہیں پہلے ہے، بات کی نہیں، بات سنیں، پہلے بائے بات کی نہیں، آپ پہلے. مول صاحب بائی ڈیفالٹ مرزا صاحب کو نعوذ باللہ جھوٹا ہی مانتے ہیں نا. تو آپ نہیں اپنے نہیں، آپ عقیدے سچا کو مانتے ہیں نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج سے تقریباً 130 سال پہلے جی 130 سال جی پہلے ختم نبوت تھی کہ نہیں تھی؟ حضرت عیسیٰ جی آسمان پر تھے کہ نہیں تھے؟ جی جی. کہاں لکھا یہ حضرت عیسیٰ آسمان پر تھے 130 میں سال کہتا ہوں بات چھوڑیں، وہ کرتا ہوں ساری، پہلے مرزا صاحب کی بات اور کریں. یار مولوی صاحب کل بھی 2 گھنٹے نہیں کیا آپ نے، آج ہاں کر دیں. ہو، کل بھی یہی تو بات ہے. آپ ماشاء چور اللہ دروازے سے نکلتے، میں نہیں نکلنے دوں گا. میرے ایک پرسوں آیت ایک حدیث کا مطالبہ ہے. آپ کہتے ہیں مرزا صاحب جھوٹے ہیں، تو میں بات شروع کر دیتا ہوں. جس طرح آپ تمام آپ چلے اعلان کریں. میں کر دیتا ہوں، اس کا بھی فیصلہ کر دیتا ہوں. جی کریں. تمام منکرین کے مطابق نہ نہ آپ کے مطابق، آپ ہر نبی تمام احمدیت کے مطابق. ہر نبی جھوٹا ہوتا ہے. تمام منکرین، ابو جہل ہو، شیبہ دیکھیں نا، ہو، اپنے اتبا ابو کا ہو. نام لیا نا، اپنے ابو کا لیا، اپنا لیں، ابو کا نہ لیں، اپنا نہیں لیں. یار برسد دیکھیں، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا، لیکن تو آپ میں کر رہا ہوں، دیکھیں، آپ یہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، وہی جواب آپ کو دیکھیں دے رہا ہوں میں. پلیز ایسے یہ برا لگتا جو ہے. میں آپ نے ابو جال کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا وہ آپ کے ابو ہیں، میں نے بھی سر یہی کہا. میں نے آپ کو نہیں کہا. اب مولوی صاحب دیکھیں، وہ تو آپ کو سمجھ لگ گئی، لیکن میں نے آپ کو نہیں ہاں کہا. جی جی، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو لگ گئی، کوئی بات نہیں. آپ کو سمجھ لگ جی گئی. جی، اچھا جی، آپ کو اچھے لگ گئی. بچوں کی طرح نا مولوی صاحب، پیارے اچھا بچوں میں کی بھی طرح. بیچ میں ایک چیز ایڈ کروں. مولوی صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ قرآن کے چیپٹر 3 کی ورس 7 پڑھ دیں تو اس میں ان کے لیے جواب ہے، پلیز، اگر آپ کو یاد ہے تو. چیپٹر 3 آل عمران کی ورس 7. میں کہتا ہوں محترمہ، میں تو ان کے لیے پڑھوں اس لیے کہ جو میں نے ان سے پہلے دن کل مانگی تھی نا دلیل، میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے قرآن آپ کہیں گے نا ختم نہیں نبوت میں پلیز جس پڑھ طرح دیں، واپس آ میرا ذرا دل خوش ہو جائے گا. اس میں جواب ہے ان کے لیے، آپ پلیز اگر پڑھ سکتے ہیں. آل عمران کی 7ویں ورس ہے وہ، پلیز اگر آپ پڑھ سکتے ہیں. کبھی بھی یہ آؤز منکر کیا حدیث بولے بولے. منکر حدیث بھائی ہیں. جی پڑھیں. قرآن کیوں نہیں پڑھیں گے؟ وہ میرے بھائی ہیں، بالکل پڑھیں گے. آپ پلیز پڑھیے گا. جی پڑھ لیں جی، چلیں. اچھا محترم، میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وہ آپ کے مطابق ہے، اس لیے کورس میں لکھا ہے. میں احمدی نہیں ہوں. میں نہیں یقین نہیں، ان کریں کی بات ان کر کے رہا لیے ہوں، ان کی. آپ جواب کو ہے. نہیں کہہ رہا، جی جی. آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ان کو کہہ رہا ہوں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ان کو کہہ رہا ہوں. اچھا یار باقی دوست پلیز تھوڑا سا مت بولے، ان کو اپنے حساب سے چلنے دیں. مولوی صاحب کو کل بھی ماشاءاللہ مولوی صاحب نہیں آئے قرآن جی، کی. آیت کون سی آپ کہہ رہے ہیں محترم، بتائیں ذرا مجھے. یہ 7 نمبر ورس ہے. آل عمران چیپٹر 3 ہے، ٹھیک ہے، اس کی 7 ورس ہے. جی یہ هو الذی انزل علیک الکتاب والی بات کہہ رہے ہیں، یہ آیت کہہ رہے ہیں. جی جی، یہ ذرا پڑھ دیں اس کا اعوذ ترجمہ. باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب.
जी मोहतरम। जी ये हो गई जी आयत। इसको तर्जुमा तो कर देना प्लीज जरा सारे। तर्जुमा ये है, तर्जुमा ये है, वही ज़ात है यानी रब ताला की जिसने उतारी है आप पर किताब, उसमें कुछ आयात मोहकम हैं, वही असल किताब की असल हैं, और दूसरी कुछ मुतशाबे हैं यानी उनके कई माने मिलते जुलते आपस के अंदर मिलती जुलती आयात हैं कुछ। रहे वो लोग जो जिनके दिलों में टेढ़ी है, टेढ़ापन है, कजी है, यानी फैयत तबिउन मा तशाबा मिनहु, तो पीछा करते हैं उसका जो मिलती जुलती आयात यानी अपना मतलब निकाले, इब्तिगाल फितना, फितना तलाश करने के लिए, वह इब्तिगा तावीली, और उनकी असल मुराद तलाश के लिए, वो वमा यालमु तावीलहु, उसकी असल मुराद को सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। वरासिखून फिल इल्म, और जो इल्म में पुख्ता हैं जिनको अल्लाह ताला उसके मुताल्लिक कुछ चीज देते हैं, वो यकूलून कहते हैं आमन्ना भी, हम ईमान ले अल्लाह पर, हम इन आयात पर ईमान लाए जिनके मुतशाबे आयात हैं। कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, और हमारा दावा है और उन अहले ईमान का दावा है कि सारा कुछ अल्लाह की तरफ, मोहकम आयात भी मुतशाबे आयात भी सब अल्लाह की तरफ से है। ये जवाब है। अब ये देख लें कि आपका अकीदा यही जबरदस्त भाईजान, जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया। अब मौलवी साहब देखें, आपने ये आयात भी पढ़ दी हैं, अब आप बताएं कि आपका जो हज़रत ईसा के आसमान पर जाने का अकीदा है मुहकम आयत से है कि नहीं है, कि मुतशाबिहात से? आपका मिर्जा साहब को नबी माना मुहकम आयत से है, मुतशाबे से है, किसी से दे दे, देख ले, मैं बात करता हूँ आगे, देख ले जी। कल भी माशाल्लाह, हाँ जी 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 खाएं जी, बात तक करने देंगे अब आपने देखी करने देना। बात ये है कि कल भी माशाल्लाह अहले सुन्नत के भाई कुछ मेरे पर्सन में आगे थे और उन्होंने देखा था, यूट्यूब पे भी पढ़ा है, मौलवी साहब का देख लें कि इन्होंने कल भी अपना कोई अकीदा पेश नहीं किया। जब मैं इनसे अल्हम्दुलिल्लाह किया कि मिर्जा साहब झूठे हैं, हाँ, कोई बगैर ना नबी अल्लाह ने बनाया उनको, आपका दावा बातिल है, बिला दलील है, एक आयत एक हदीस का मुतालबा किया है। ठीक हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे, आसमान से नज़ूल होगा उनका, कुरान हदीस भरी पड़ियां, उम्मत का इजमा है, नबी सलाम के बाद नबूवत खत्म हो चुका है, इस पे कुरानी आयात हदीस भरी पड़ी हैं। मैंने इन सारे टापकों का आपके चोर दरवाजे को छेड़ा इसलिए नहीं, इसलिए कि आप मिर्जा साहब को झूठा कहें कि उनका दावा बातिल और झूठा है। अब हम दूसरे टॉपिक के गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो जिस मजमून को आप हाथ लगाएंगे उस पे आयात हदीस की बुछाड़ लग ये तालिब इल्म करेगा और सबके सामने करेगा। अच्छा, अब ये है बुछाड़ बुछूड़ तो है कोई नहीं आपके पास, अगर होती तो कल भी करते, अल्लाह के फजल से आप मिर्जा साहब अलैहि को झूठा तो कहें, अहमदी लोग कहें आप झूठा है, तो मैं बात करूं। अलैहिस्सलाम, तो बात ये है देखें, ये सलाम जो है ना, ये इमाम महदी पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आप कर सकते हैं, ठीक है, आप भाई मौलवी हैं, कर सकते हैं भैया, ये आपका क्या है? मिर्जा साहब अलैहि को कहा नबी इमाम महदी को, इमाम महदी के मुतालिक ना, मिर्जा साहब का इमाम महदी होने का भी दावा है ना। अच्छा जी, चलें जी मौलवी साहब, ये तो बता दें लोगों को कितने दावे हैं उनके। मिर्जा साहब के वही दावे हैं जो हदीसों में लिखे हैं, वही दावे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। दावा वो मिर्जा साहब के मुताल्लिक लिखे हैं हदीसों में, दावा उनका लिखा है, उनका नाम है। एक आने वाले को अगर तो हजरत ईसा है वो, देखें हमारे नजदीक में बोल, देखें थोड़ा इसको क्लोज करते हैं, ऐसे बेकार का टाइम ज़ाया का ज़िया है, और भी लोग नीचे बहुत सारे कर रहे हैं। सुने जरा मिर्जा साहब अलैहि की नबूवत के लिए कोई अलैहिस्सलाम, जितने भी हदीसें हैं जिनमें अल्लाह ताला के प्यारे नबी सैयदना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले को मुख्तलिफ टाइटल दिए हैं। मसीह इब्न मरियम का टाइटल दिया, इमामन महदीयन का टाइटल दिया, व हकमन अदलन का टाइटल दिया। ये 3 टाइटल हैं मेन, और आने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीउल्लाह ईसा भी फरमाया। तो ये चारों जो टाइटल हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ईसा भी फरमाया, तो मिर्जा साहब कहाँ से आ गए हिमालय जी? आपके नजदीक क्या है? अगर मिर्जा साहब नहीं है, नहीं, मैंने तो एक ही सवाल किया है, उसका जवाब तो हाँ ना में देने आगे बात करूं। मैं पूछ रहा हूं मौलवी साहब, मैं कह रहा हूं आपको धड़ल्ले के साथ यहाँ बैठकर कि ये जो चारों बड़े टाइटल हैं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं आने वाले व इमामुकुम मिनकुम को, अपने जो इमाम उनकी उम्मत में से आना है उसको दिए हैं। तो ये चारों दावे मिर्जा साहब के हैं और ये चारों दावे हदीसों में मौजूद हैं, हजूर ने फरमाया है। जो हम ये कहते हैं कि हज़रत ईसा इसके मिसदाक नहीं हो सकते, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व रसूलन इला बनी इसराइल हैं, बनी इसराइल के रसूल हैं वो।
वो उम्मत मोहम्मदिया के रसूल कब हैं, हमें आप ये कुरान से बता दें, हम आपकी बात मान लेंगे। बोलें जी, आयत पढ़ें। बात खत्म होगी, मेरी खत्म होगी। मैं कहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलात व सलाम बनी इसराइल की तरह नबी हैं, मैं आपके साथ इत्तेफाक कर गया, बात खत्म हो गई। हो गई। अब आपने कहा कि मिर्जा साहब उम्मत में नबी हैं, आपका दावा है? एक आयत हदीस पढ़ दें जी, ठीक हो गया जी। आपने ये मान लिया है कि वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं वो बनी इसराइल के रसूल हैं, और बनी इसराइल की तरफ ही रसूल थे, उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आपने कहा नहीं रसूल। माशाल्लाह। अब शरीयत रसूल नहीं आएंगे, ठीक है, मान लिया मैंने, ठीक है। अब क्या आएंगे जी, क्या आएंगे अब? वो आप छोड़े, आप तो अपनी बात तो कर रहे हैं यार, ये कैसा जी मजाक है आपका? नहीं मजाक क्या मतलब, आप मजाक कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो, ये क्या बात की आपने? क्या आएंगे, क्या आएंगे आप? वो मैं कहता हूँ मिर्जा साहब कैसे नबी साबित हो गए? हजरत ईसा क्या आएंगे? अब मुझे बताओ क्या आएंगे? पूछ रहा हूँ कि मिर्जा साहब नबी कैसे बन गए? ये आपको किसने बताया कि साहिब शरीयत नबी अब नहीं होंगे हजरत ईसा? क्या किसने उनकी शरीयत छीन ली है भाई? वो पहले ये बताओ, छोड़ दे इस बात को, वो क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, क्यों? आप झूठ बोल रहे हैं ना सारे नबी हैं मौलवी साहब। हाँ, वो बनी इसराइल के नबी है, तो बनी इसराइल की तरफ रखो ना उनको, उम्मत मोहम्मदिया की तरफ क्यों लाते हो? क्या उसकी दलील दो। अच्छा, झूठा की किसको लाते हैं आप? झूठा की हम हजरत ईसा का आना नहीं मानते, हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है, मेरे मोहतरम, मेरे प्यारो, हम कहते हैं, सुने, हम कहते हैं कि वा इमामुकुम, हजूर ने फरमाया वा इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारा इमाम तुम्हें में से होगा, उम्मत में से आएगा। अच्छा, बात हो गई आपकी, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का रसूल हैं, आप मानते हैं ना? बिल्कुल थे, मानते हैं ना? थे। आपने कहा जी अब मिर्जा साहब उम्मती नबी हैं, मिर्जा साहब, ये आप कहते हैं ना? हम कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ये क्या हदीस पढ़ दे, बस बात खत्म। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इसके लिए सुन ले, दोबारा सुन ले, बल्कि मैं आपको कल भी 6 दफा बताया था, थोड़ा मेरी बात की तरफ दिमाग लड़ाएं। हमारा ये अकीदा है कि लड़ाऊंगा तो फिर ना जी इस्लाम वाला दिमाग है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा। तो कहाँ है इस्लाम? निकाल नहीं रहे, बस इधर अड़े हुए हो। अच्छा सुने, एक नहीं है, मैंने आपके सामने ये 3 हदीसें हैं मुख्तलिफ, जिसका मैंने आपको लुबे लबाब बताया है। दलील पेश करें। ये जी दलील यही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके नजदीक आने हैं, उनके लिए भी वही दलीलें हैं जो हम मांग रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, चलेंगे आप उनको छोड़ दें। उनको आप नहीं छोड़ रहे, मैं उनको छोड़ रहा हूँ, आप नहीं छोड़ रहे, आप उनको पकड़े बैठे हो। आप कभी कहते हो कि वो जब आएंगे तो वो उम्मती होंगे, वो ये होंगे, वो नबी नहीं होंगे, शरीयत के बगैर आएंगे, वो आएंगे, ये आएंगे, आप नहीं छोड़ते। आप क्यों नहीं छोड़ रहे उनको? करके खामोश हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल का रसूल है। तो फिर ये हमें समझा दें। चले ऐसा कर लेते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि वो बनी इसराइल की तरफ रसूल हैं, चले, चोर दरवाजा नहीं है ये कुरान हदीस है, ये चोर दरवाजा नहीं है मौलवी साहब, ना ये कुरान हदीस है। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे हैं, आपने क्या लिया बनी इसराइल के रसूल है, मान लिया। ये हज़रत ईसा आसमान पर है, आसमान पर है। मैं कहता हूँ, आप क्या कहते हैं, कहाँ है जी, बताया जरा। मुझे तो नहीं पता, आपने बताना है, आपने बताना है, इनको आपने लाना है। आपने क्यों बताना? हजूर के बाद किससे? मैं बताता हूँ कि सिर्फ वो बनी इसराइल के रसूल थे, बस हमें इतना पता उनका। मैं आपसे इत्तेफाक कर गया ना, मैं कर गया ना। आप बताएं वो जिंदा है, ये तो इत्तेफाक आपने करना है, कुरान की आयत है, मोहकम आयत है। मैं इत्तेफाक कर गया जी। अब मुझे बताएं मेरे मौलवी साहब, आप देखें, इधर आए हैं हमें समझाने के लिए ये बात। देखिए, हम आपसे मुकाबला नहीं करेंगे, देखिए मेरी बात सुने, हम आपसे मुकाबला नहीं करेंगे। आप ऐसा करें, आप हम सबको बात तो सुने, प्यारे भाई, आप मेरी बात तो सुने, जी सुने हो, मेरी बात तो सुने। आप हमें हजरत ईसा का बता दें, वो कहाँ है? अगर तो वो आसमान पर जिंदा है। का तल्लुक मादी के आपके मिर्जा साहब से क्या है, बताएं ना। मैं बताता हूँ। मिर्जा साहब से ये है कि जिस बंदे के ज़हन में ये अकीदा है कि हजरत ईसा ने आना है, सुन तो ले, अब बताने लगता हो तो बताने भी नहीं देते। जिस बंदे के दिमाग में, मौलवी साहब, जिस बंदे के दिमाग में ये अकीदा है कि हजरत ईसा को हजूर से पहले आसमानों पर उठा लिया है, उसी ने उन्होंने ही वापस आना है कुर्बे क़यामत। ठीक है। तो पहले वो आए थे बनी इसराइल की तरफ, अब आपने हमें बताया है कि वो उम्मत मोहम्मदिया में आएंगे, और पता नहीं, आप कहते हैं कि वो शरीयत नहीं लाएंगे और बल्कि शरीयत मोहम्मदी पर अमल करेंगे। तो ये बातें कहाँ लिखी हैं कि शरीयत मोहम्मदी पर अमल करेंगे? हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें हमारे इल्म में इजाफा कर दें।
میں نے کہا میں آپ کی اس بات کا جواب بالکل بہترین انداز میں دیتا ہوں. صرف مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں آپ سے اتفاق کر کے جو علماء کہتے ہیں وقتی فرضی طور پہ، یہ اس کو ایشو نہیں بنانا، ٹھیک ہے، سارا لوگ سن رہے ہیں جتنے بیٹھے ہیں، یہ وقتی طور پہ میں نے کہا جو آپ کا عقیدہ ہے نا، موقف آپ کا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے رسول ہیں، بس ختم ہو گیا اب، ٹھیک ہے جی، وہ اس امت میں نہیں آئیں گے. جو ہمارے علماء کا موقف ہے کہ امت اسلام، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے ہمارے علماء کہتے ہیں آنا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں آنا، ان نے یہی اختلاف ہے نا، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ بات کریں، ختم نبوت ہو گئی، نہیں آنا. ہم یہ کہتے ہیں نہیں آنا، نہیں آنا، ٹھیک ہے نا. کیوں نہیں آنا؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں، وجہ بتا رہا ہوں. ختم نبوت ہوگی، ختم نبوت ہے، انہیں نہیں آنا، ٹھیک نہیں ہے جی. آنا. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ میں آپ کے ساتھ علماء کی نہ ماننے کے باوجود سمجھانے کی خاطر اتفاق کرتا ہوں. مرزا صاحب نبی ہیں، ایک آیت حدیث پڑھے علیہ مالی، بس دیکھیں جی پورے، میں کل بھی آپ کو بتایا تھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں. چلیں یہ دیکھیں جی، سارے لوگ دیکھ لیں کہ آپ کے مولوی صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو یہ ضرور دیتے، ان کے پاس نہیں ہے. بلکہ یار مجھے بات تو کرنے دینا، یہ تو زیادتی ہے نا مولوی صاحب، یہ طریقہ آپ کا ٹھیک نہیں. اب تھوڑا سا آپ نے اپنی بات کی، میں بولا نہیں. یہ دیکھیں مرجان، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. آپ بے شک مولوی، میں آپ کی عزت بھی کر رہا ہوں. بات یہ ہے جی کہ دیکھیں آپ کے علماء نے، عالم صاحب نے کوئی بھی آیت نہیں پڑھی کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر ہے، بلکہ انہوں نے ہمارے آگے سلنڈر کر دیا اور کہا جی کہ بے شک علماء اڑتے ہیں. بالکل بہترین کہا انہوں نے کہ علماء اڑتے ہیں. یہی بات ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا مولوی اڑتا ہے اس بات پر. یہ بات حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے کی قرآن میں بالکل نہیں لکھی. ایک بات یہ ماشاءاللہ انہوں نے مان لی ہے. ہم میرے سے انہوں نے پوچھا کہ کیوں، ہم کیا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کے متعلق دوبارہ نہ آنے کا؟ ہم کہتے ہیں ختم نبوت ہو گئی ہے، ختم نبوت کے بعد وہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں یہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں کسی بھی جگہ نبوت کے بند ہونے کا ذکر نہیں ہے. جیسے کہ حضرت، پلیز یار پلیز، مجھے بات تو اپنی، اب آپ نے میرے سے سوال کیا، اس کا جواب اب دینے لگا تھا، اب آیا تھا اس کی باری. آپ کے پسندیدہ مرزا صاحب علیہ نبی ہیں، علیہ السلام بتانے لگا ہوں. سنیں، علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ الصلوۃ والسلام، 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 علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ اب حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پاک احادیث میں آنے والے کو مختلف نام دیے، یہ نام ہیں دیے، کیا نام دیے؟ مسیح ابن مریم کا نام دیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا سارے مان گئے. ماشاءاللہ آج اتفاق ہو گیا ہمارا، اہل حدیثوں سے ہو گیا. آپ نے مانا کے لیے آپ کو کہا ہے، کوئی بھی نہیں مانا. جھوٹنا یار دیکھیں، پھر واپس آ گئے یار، نیچے کر دوں گا میں، آپ بولے بیچ میں آپ تو یہ دیکھیں جی، بالکل نہیں مانا. پھر وہاں کہاں چٹائی ہے؟ اگر نہیں مانا تو اس پر دلیل دیں بھائی. اگر نہیں، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا چونکہ یہ دلیل کوئی دے نہیں سکے، اس کا مطلب ہے کہ نہ تو وہ آسمان پر گئے ہیں، نہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے. اب حدیثوں میں آنے والے کو 4 بڑے بڑے ٹائٹل دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے، فرمایا عیسیٰ ابن مریم امامن مہدین وحکمن عدلن. یہ جو 3 ٹائٹل ہیں، یہ ایک ہی حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہیں. دوسری حدیث میں آنے والے کو نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ یرغب عیسیٰ نبی اللہ لیس بینی و بینہ نبی، یہ میرے سونے نبی، پاک نبی، طیب نبی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اصدق الصادقین، احمد ماہی عاقب نے فرمایا. اور یہ سارے کے سارے جو 4 ٹائٹل ہیں بڑے والے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، اس لیے یہ چاروں ٹائٹل مرزا صاحب کا دعویٰ ہے. جیسے تمام انبیاء نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا، تو سب نے یہ دعوے کیے، ہم نے مان لیے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانا. اگر تو حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، اب سن لیں، اب میں آپ کو ایک دینے لگا ہوں ایک اور بات. اگر تو حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تو مرزا صاحب کے یہ چاروں دعوے جھوٹے ہیں. اگر حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ ہیں تو چاروں دعوے مرزا صاحب کے ہم جھوٹے مانیں گے.
अगर कोई माई का लाल ये साबित कर दे हजरत ईसा को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया और वो दोबारा आ रहे हैं, तो मिर्जा साहब के ये चारों दावे झूठे मान लूंगा मैं, अभी मानूंगा अब सारों के सामने, और सारे अहमदी उनकी बैत कर लेंगे। ले जी मौलवी साहब ये क्या बोले। क्या किया आपने? आपको समझा आपने क्या कहा? आपको समझाइए खुद। खुद मुझे तो आइए, सबको आइए। वो आपकी दुकान है, आपकी दुकान है, इसलिए अफसोस की बात है यार। सर आप भी मैंने दुकान पे आपको बैठे हैं, आप भी चलाएं दुकान मेरी अपनी, बात आयत पढ़े ना, उसके मुकाबले में कोई बताए ना। आप मेरे मोहतरम आप बात सुने मेरी। ये जी। आप ज्यादती कर रहे हैं, आप बात को गलत कर रहे हैं। मैंने बड़े इत्तेफाक से बात की है, उलमा इत्तेफाक करें ना करें, आपको समझाने के लिए मैंने आपसे इत्तेफाक किया और आपको कहा कि मिर्जा अलैहि साहब को अलैहिस्सलाम। आपने कहा कि नबी होने का दावा आप सच्चा नबी मानते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि एक आयत और एक हदीस का मैंने आपसे मुतालबा किया। रही मैंने आपके सामने मोहतरम दो हदीसें रखी हैं, एक मुस्नद अहमद बिन हंबल की रखी है। मुझे अच्छा, बात करने दें आप, ठीक है, मुझे बात करने दें आप। जो आपने चार औसाफ जिक्र किए हैं, वो चार औसाफ मिर्जा साहब पे लगते हैं, इसलिए कि उन्होंने दावा किया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कोई भी ना कर सकता है, उम्मत मोहम्मदिया में कोई भी कर दे। ये कौन सा मेयार आपको दिया? अल्लाह ने दिया या प्यारे नबी अस्दकुर सादिकीन अरहमुर राहिमीन रऊफुर रहीम पैगंबर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर। शुक्र है, जाग गया था। नबी अलैहि जितनी तारीफ करें कम है। जी, थोड़ा माशाअल्लाह। रहमतों का नुज़ूल नबी अलैहि सलाम पर। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन। ये चारों औसाफ जो जिक्र किए हैं मिर्जा साहब के दावे के मुताबिक उन पे फिट होते हैं। आपको जी, ये जी। किसने बताया? ये मिर्जा साहब ने ही हमें बताया। देखिए मेरी बात सुने, आप मैं कैसे मान दोबारा गए? आप मैं कैसे बता मान रहा गए? हूँ, जैसे मैं आप कैसे मान गए? सुने जैसे मैंने यहाँ ठहरिए, मुझे बात करना, मुझे बात करने दे। ओके, मैं अब ओके। मिर्जा साहब की किताब का हवाला पेश करने लगा हूँ कि मिर्जा साहब झूठे हैं। अब बात सुनना नहीं, जरा, बात सुनना जरा मेरी। बात तो हाँ, सुने, हाँ, हाँ, ना करें, बात तो बात सुने सुने मेरी। मेरी बात हो मौलवी साहब, प्लीज मेरे सुन ले, प्लीज मेरा सुन ले, मेरा सुन ले अब- बात। मुझे बात होने पूरी। आप ये जो एक पहले बंदे बात को मैं की है, झूठा ये जो साबित आपका कर पहला रहा हूं। सवाल मैं था झूठा वो साबित हल कर हो रहा गया, हूं। पहला हैं? सवाल हल हो गया आपका, जी, हल हो वही गया हल है। ना, तब अगले भी जा रहे हैं। अभी बात करने लगा। जब नहीं, नहीं, वो भी बात जब करने भी लगा कोई मैं। पहला सवाल हल आपने होता कहा कि है मिर्जा तो साहब आदमी का अगली दावा तरफ जाता है। किया, अब आप मान गए हो लिया। वहां पे फंस, ये सवाल आपके का मैंने दे दिया आपको जवाब। अब आपके पास अब आपके पास कोई रास्ता कुरान से तो रहा नहीं, अब आप इधर उधर घूम रहे हो। अब कहते हैं जी कि मैं झूठा, आप तो बाय डिफॉल्ट उनको झूठा मानते हो, आप तो नबी का आना मानते ही नहीं। आप तो बाय डिफॉल्ट मिर्जा साहब को झूठा ही मानते हो पहले ही। आप सच्चा मानते हो? आप तो, मैं तो उसकी बता रहा हूं ना कि हदीसों में मैं सच्चा मानता हूं, तो उस पर दलील दे रहा हूं कि जिस तरह हमने तमाम, देखिए मैंने हजरत ईसा को नहीं देखा। मेरी जान, प्लीज मेरी जान, ये बताएं मुझे, एक बंदा खुद कहे उठ के कि मैं सच्चा हूं, मुझे मान लो, ये कोई असूल है? बिल्कुल है, मैं साबित करता हूं। हाँ बिल्कुल 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 अस्तगफिरुल्लाह। बिल्कुल, यानी मैं बगैर बताता नबी के कह दिया हूँ, कि मैं बताता सच्चा हूँ, हूं, नबी हूं। बताता हूँ। हाँ जी, हर नबी बताओ। कहता है, हर नबी कहता है, हर अल्लाह नबी की ऐसे वही के कहता है। बगैर, अल्लाह के वही के बगैर। मैंने कब कहा है कि अल्लाह की वही के साथ या बगैर? जाहिर है अल्लाह वही करता है तो वो कहता है ना। अच्छा, मिर्जा साहब ने अल्लाह की वही के साथ कहा है? बिल्कुल, अल्लाह ने उनको कहा है कि तुम नबी और रसूल, बात खत्म हो वो गई। जो अब हाँ आपके जी। जिम्मे वो वही है, बस वो पढ़े, बस बात खत्म। अब बात कौन खत्म। सी वही? ये अब पकड़ा गया है, झूठा इंसान है। अब पकड़ा गया मिर्जा साहब। कहाँ पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया? एक कोई वही नहीं पढ़े, वही बताएं, वही बताएं। देखे वही पढ़े। यार, एक मिनट, तू तो थले बैठ भाई, जरा थले बैठ, हाँ, तू थले बैठ, इस पढ़ बंदर लिया को मैं। कोई ना उठाए, इस बंदर को ना उठाए कोई भी अब, ठीक है? आप हाँ सुअर को जी। उठाए, आप सुअर को उठाए। ऐसा नहीं ना नहीं, बोलो। अब नहीं ऐसे ना कहें, बेचारा तुम्हारा मुसलमान आप भी ना भाई है, फिक्र। कोई मसला नहीं। जी जी, अच्छा कोई आप भी नहीं, ना मुसलमान फिक्र। भाई। अच्छा मौलवी साहब, जी, जी। मेरी बात सुने, मेरी बात जी, सुने। देखिए हजरत ईसा, हजरत वो वही मूसा, करें। हजरत हारून, सारे अंबिया आए ना। हमें कैसे पता वो- चला? वो- रसूलुल्लाह, वो- सुने जरा, सुने वो सुने अंबिया यार, की बात, अब बात मुझे जवाब तो आप देने दो, हम मैं जवाब दे रहा हूँ। बात कर रहे हैं। अब आप मुझे जवाब भी नहीं देने दे रहे यार मौलवी साहब, क्या तरीका है? जी। अब आपने जो सवाल किया है मैं इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि आप जवाब जी, देने वही- के काबिल वही नहीं है। बता- आपका सुने जो बता रहे अकीदा हो। है मिर्जा वो साबित साहब- आप मिर्जा करने के साहब काबिल, अलैहि यार सलाम प्लीज पे आपने प्लीज सुने ओवरलैप कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो, बस ऊपर बोली जा रहे हो बातों की। जब आप जी, सवाल वही करते सुनाई- हो, जब वही आप सुनाई सवाल करते हो, जिस सुनाए- काबिल हो सुनाए भाई, सुनाए। उतनी बात सुनाए करते हो ना, भाई। फिर मैं आपको सही तरीके से रखूंगा, फिर सब्र करो ना जरा। मैं ना देखो वही जी, सुना, मैं भी आपको बात रखूंगा, ये वही है, सुनाया। बात ये है जी, सुन ले, हमने तमाम अंबिया को किस तरह माना है? हम उसी तरह मिर्जा साहब को मानते हैं। मैं बता देता हूँ, हमें पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आए, हज़रत यूनुस आए, हज़रत
यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, हमने इनको किसी भी वही का लाजमी होना नहीं माना कि ये इनकी वही दिखाओ तो तब हम इन पर ईमान लाएंगे। ये बातें सारी हमें पता चलती हैं हजूर से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये जो आने वाला मसीह, सुनो अब आगे चलो, आगे अब मेरी बात सुन लो। इसी बहर पर, इसी दलील पर हमने मिर्जा साहब को माना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले को 4 टाइटल दिए, वो चारों टाइटल हम मिर्जा साहब पे मानते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नाम नहीं लिया। क्या नाम नहीं लिया? नाम तो किसी नबी का कभी नहीं लिया, किसी नबी का, यूनुस का नाम लिया है। अच्छा मैं बताता हूँ, हाँ इसका मैं जवाब दे देता हूँ। अब ये सुनना है आपने मेरी बात को जी। जो भी नबी आया कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पूरी आप कुरान देख लें, पुरानी किताबें देख लें, मिसाल के तौर पर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनसे पहले थी ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें उनके नाम की कोई पेशगोई मौजूद नहीं है। निशानियाँ होती हैं, क्राइन होते हैं, दलाइल होते हैं, या उनकी कुछ वजाहत होती है। मिसाल के तौर पर चले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देख लेते हैं। फरमाया कि वो उनकी किताबों में लिखा था कि वो 10,000 कुद्दूसियों के साथ फारान की वादियों से आएगा, ये थी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। और फिर नाम अहमद होगा। अब देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली, तमाम साहबा ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई थी अहमद नाम से, लेकिन मोहम्मद नाम से मान लिया। ये जो सहाबा ने माना है, मैं यही बात सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए, माँ अना लही व साहबी, मैं उस पर चलते हुए मैंने भी आने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह इब्न मरियम इमामन महदीयन व हकमन अदलन फरमाया और नबीउल्लाह फरमाया। मैंने सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए मिर्जा साहब ने दावा किया, मैंने उन पर मान लिया। ये बात है, ये वही है, ये वही है, फिर वही है, फिर वही। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मोहतरम मेरी जान, इतना बड़ा जुल्म यार, ये सुनने वाले सारे उनके दिमाग काम नहीं कर रहे, आप इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं यार, ये वही है। कोई आपके पास कोई बुरहान है सर तो हज़रत ईसा के आसमान पर जाने का रखो, नहीं है आपकी पेश करें, अल्लाह की तरफ से होती है, आपकी जो क्या कहते हैं बेबसी है ना, एक मांगी है, एक आपकी बेबसी, सारे देख रहे हैं आपकी बेबसी। मौलवी साहब आपने बना लिया, मानो हमने नहीं बनाया। सुने अच्छा, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। देखें आप तो जवाब नहीं दे रहे, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इसका भी देता हूँ। आपने कहा जी हमने बना लिया, ठीक है। हर नबी का जो मुनकर होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपको गुस्सा आता है, हर नबी का जो मुनकर होता है वो यही कहता है कि तुमने बना लिया। यहूदियों ने यही कहा था, यहूदी यही कहते थे कि तुमने नबी बनाया इसको। वो 11 लोगों को ना, 11 हमारियों को वो कहते थे ये नबी नहीं है, अपने अल्लाह के पास जाना है। मैंने तो आपने भी अल्लाह के पास ही जाना जनाब। हाँ, अल्लाह के फजल से। अच्छा, मुझे एक छोटा सा मैं आपको दूं, और खुराक मामूली थी। मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम इस वक्त जन्नत में है कि जहन्नम में? जन्नत में होंगे बिल्कुल, 100%। अस्तगफिरुल्लाह। एक हवाला, बस एक हवाला। क्या मतलब एक हवाला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में, हर नबी जन्नत में, हर नबी जन्नत में। मैं ना मिर्जा साहब नबी जन्नत में है, हर नबी जन्नत में होगा, हर नबी जन्नत में होगा। फिर वही बात भी चली गई। मैंने एक सवाल आपसे किया है, मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम। देखें जी, अब खामोश रहना, सुनना है आपने, सुनना है मेरी बात, इसका जवाब देता हूँ मैं आपको, इसका भी जवाब देता हूँ। देखिए मैं जवाब देने बैठा हूँ आपको, आपके देखें जी मौलवी साहब है, माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। मेरे से ही सवाल कर रहे हैं आके, सुने ना, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए प्यारे, रुक जाए मोहतरम। अच्छा जी, बात यह है कि मौलवी साहब के पास तो कोई जवाब बन नहीं पा रहा मेरे सवालों का, एक भी सवाल का मेरे जवाब नहीं इन्होंने दिया। मैंने इनके अभी तक 4 सवालों के जवाब दिया है। अब ये जवाबों वाली जो पांड है खोली जा रहे हैं, जवाबों वाली पांड के ना कोने खोली जा रहे हैं कि यार मुझे किसी तरीके, सुन तो ले, बात तो सुने ना। मैं अब जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का, आप ना मानो, आप इनकार कर दो। एक भी जवाब नहीं दिया, सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड। एक भाई मांगी है, एक भाई कोशिश नहीं कर सके। आप क्या जवाब दिया आपने? अच्छा, अगर कोई मैं मिर्जा साहब की किताब से उनकी वही दिखा दूं तो मिर्जा साहब को नबी मान लोगे? बिल्कुल, अल्लाह की तरफ साबित हो जाए, मान जाऊंगा। अल्लाह के पास कैसे साबित होगी वो? आप तो मानोगे ही नहीं। जैसे कुरान साबित हुआ, जैसे नबी अलैहिस्सलाम पे वही साबित हुई है, वैसे कैसे साबित हुई है हुजूर पर वही? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया, पूरी दुनिया मान रही है, आप भी मान रहे हैं। नहीं, हम तो मानते हैं, क्रिश्चियन नहीं मानते। देखें क्रिश्चियन नहीं मानते, यहूदी नहीं मानते, क्रिश्चियन को किसी को उठा लेते, क्रिश्चियन नहीं मानते ईसाई,
اللہ اکبر اللہ صحیح نہیں مانتے. وہ کہتے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ سارا آپ کچھ عیسائی ہیں؟ توریت آپ کا. عیسائی ہیں؟ ہم نہیں, آپ آپ کہتے ہیں عیسائی سارے مانتے ہو. آپ نے ابھی کہا سارے مانتے ہیں, اب مجھے کہہ رہے صحیح. سارے سے مراد لفظ سن لیں, سارے سے مراد لفظ سن لیں میرا پورا. سارے سے مراد میں نے کہا امت مسلمہ پوری پوری مانتی ہے کہ نہیں؟ رک جاؤ یہیں پہ, رک جاؤ اب رک جاؤ, اب رک جاؤ یہیں پہ, اب یہیں پہ رک جاؤ, یہیں پہ رک جاؤ. جی, جس طرح آپ نے یہ کہا ہے کہ پوری امت محمدیہ مانتی ہے, رسول کے امتی سارے مانتے ہیں بشمول ہمارے, یہ بات ہم مانتے ہیں. سنو اب سنو نا, ابھی سنو نا, ابھی سن تو لو نا بھائی پیارے دوست, سن تو لو. کیوں مانتے ہیں ہم لوگ, میں اور آپ کیوں مانتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والوں میں سے ہیں. اچھا ایک ہوتے ہیں, ابھی یار پلیز مجھے بات تو پوری کرنے دو. جب آپ کے پاس مولوی صاحب آپ کے پاس سوال کا جواب تو ہوتا نہیں, اب میں جب دینے لگتا ہوں مجھے بھی نہیں دینے دیتے یار, لوگوں کو دینے دو. نہیں فریب نہیں ہے, یہ فریب نہیں ہے بھائی جان, فریب نہیں ہے. اچھا سنیں, اب دیکھیں جی کہ جی جو ایمان لاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ مانتا ہے کہ ان کی ہر بات سچی ہے, بغیر دلیل کے بھی ہم مانتے ہیں. اسی طرح حضور کی ہر بات سچی, کیوں, کیا مطلب, آپ کو شک ہے کوئی؟ میرے سونے نبی نے جو فرمایا سب سچ ہے. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں, بس تو یہی ہے. اور کیا کروں میں, اور کیا ہے, بس استغفر کیا. اللہ استغفر اللہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے رسول بنایا ہے, اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. آپ تھے اللہ ادھر, نے یہ کہا ہے, ہم آپ اس تھے لیے ادھر, مانتے ہیں. مرزا آپ صاحب ادھر ایسے تھے بات موجود جب ان پر وحی آئی ہے, آپ تھے ادھر, ہیں؟ آپ تھے ادھر. میں تھا نہیں, اسے ہی تو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ نے محفوظ رکھا, حدیث محفوظ رکھی. اگر ایسے مرزا صاحب کی رکھی ہے تو پیش کریں. اچھا دیکھیں, میں تو دیکھیں میری بات سنیں, میں تو یہ مقابلہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کسی بھی نبی سے میں تو سمجھتا ہوں ہے ہی نہیں, کیونکہ رسول پاک نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے نا. تمام نبی جو ہیں چھوٹی چھوٹی قوموں کی طرف آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں تمام دنیا کے لیے اور امام الانبیاء ہیں. حضور کا مقابلہ آپ کسی تقابلی جائزہ کیوں کر رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی؟ آپ مرزا صاحب کے ساتھ بھی کریں گے, ہمیں بڑا غصہ چڑھے گا. مرزا صاحب خود لکھ کے گئے ہیں. لعنت اللہ علی القاذفین, لعنت اللہ علی القاذفین. میں سچا انسان نہیں سمجھتا, مقابلے بات کر رہے ہیں آپ. اور میں یہ کہہ رہا ہوں محترم, آپ وہی جو وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں. کیوں؟ یہ منزل من اللہ ہے, وحی الہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرشتوں کو اتارا, اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام بولے, وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. آپ نے جس شخص کو نبی مانا ہے اس پہ اللہ کی ایک وحی ثابت کر دیں, میں اعلان کروں گا کہ آپ سچے ہیں. اچھا جی دیکھیں جی, آپ کو یہ قرآن کریم کتاب کی صورت میں ملا, یہ صورت میں ملا, کتاب کی صورت میں ملا. جی بالکل جی. اور آپ کے سامنے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی, اس میں جو چیزیں لکھی ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی بالکل. اسی طرز پر, اسی فیکٹ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والے یا پرانے نبیوں کو بھی ہم اسی طرح مانتے ہیں, مرزا صاحب کو بھی ہم اسی طرح مانتے ہیں. سن تو لے یار, جب آپ کے پاس کوئی بات ہوتی نہیں, مجھے بھی نہیں کرنے دیتے, مجھے میری بات تو پوری کرنے دو. جس طریقے سے معیار آپ نے بنایا ہے, اسی معیار پر ہم بھی مرزا صاحب کو مانتے ہیں. مرزا صاحب نے بھی اپنے بارے میں یہ لکھا ہے کہ دلیل تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضور نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اماما مہدیا و حکما عدلا. پھر ایک جگہ فرمایا, ہاں یہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے بارے میں ہے. یہ وہ استغفر اللہ, ایک بندہ دعویٰ کر دیا, مان لے یار, یہ کون سا اصول ہے؟ یہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کر کے تو آپ نے مان لیا, وہی اصول ہے. استغفر اللہ, میں کہتا ہوں قرآن شاہد ہے اس بات پہ, حدیث وہی ثابت ہے, اور پوری امت مسلمہ اجماع ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی کا اجماع نہیں ہے. کس بات پر اجماع ہے؟ کس بات پر اجماع ہے؟ امت کا کس بات پر اجماع ہے؟ استغفر اللہ, لعنت ہو اس پر, لعنت ہو جو تقابل کسی نبی کا بھی کرے. اسی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے نبوت دی, قرآن دیا, اسی طرح مرزا کو دیا. نہیں ایسے مولوی صاحب دیکھیں, بدتمیزی نہیں, میں نے ایسے نہیں کہا. پہلے آپ نے دیکھیں, آپ سنیں, رکے آرام سے دیکھیں, آپ نے, میں نے آپ کو صرف بتایا ہے چونکہ آپ نے حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا ہے, کسی کو دیکھا نہیں. بارے میں بتایا نبی مانتے ہیں, بات ختم. بھائی رکتے جا بھائی, بیان تو کرنے دے. جب آپ کے پاس کوئی نہیں خالی برتن ہو تو میرے سے ہی سن لو آج, میں ہی چلو شاید سنو,
खड़को हाँ जी, खड़कते हैं ताकि पास है कुछ तो खड़कते हैं ना भाई। हाँ, रसूलुल्लाह बड़ा सल्लल्लाहु सारे लोग हाँ जी, सुन रहे जी जी सुन रहे सारे लोग। चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले के अंबिया को हम सब जो हैं आप समेत हम ईमान इसलिए लाते हैं कि एक किताब में हमें उनका नाम लिखा हुआ पाया गया, हम उन पर ईमान लाते हैं। हम ये मानते हैं कि वो हमें सच्चे लगे। कुरान करीम फुरकान आसमान से नाज़िल हुई है जी। आपने देखी उतरती हुई? आपने उतरती हुई देखी? मैंने कहता हूँ मैंने देखी से भी ज्यादा यकीन अल्लाह के फजल से मुझे। बस ठीक है, ये चुप कर जाए, ठीक है, मैं यही अपने मुंह से चाह रहा था। जज़ाकल्लाह, अगर आपने कर दिया, इस बात पर कायम भी रहते हैं। अब आप हम सब ये मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि हमने नहीं भी देखी तब भी हम ईमान लाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, सच्चों के भी सच्चे। कहना ही उनके बारे में सच्चा तो मैं कह ही नहीं सकता, हमारे तो मुंह ही नहीं है, आपका भी नहीं है। तो बात यह है कि इसी तरह पर आपके गुलाम सादिक, आपके नौकर, आपके खादम हज़रत सैयदना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब अलैहिस्सलाम सुल्तानुल कलम ने भी फरमाया है कि मुझ पर भी अल्लाह ने जो जो टाइटल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं वो सारे मुझे अल्लाह ने बताया कि ये सारे मेरे टाइटल हैं। ये अच्छा, इतनी बात है। अब ये भी मान लो आपने रसूलुल्लाह का मान लिया। रुकिए यार रुकिए। अच्छा रुकिए, शख्स उठ के मिर्जा साहब के अलावा जो बंदा ये बातें करता है उसकी कबूल नहीं। लाओ किधर किसने की है, करो आप दावा। नहीं, अगर मैं कहता हूं अगर कोई करे कबूल नहीं। आप बताओ, सही बताए, हम देखेंगे, दावा देखेंगे उसका। फिर वही बात है, अगर मैं कहता हूं अगर कोई उठ के करता है दावा, कबूल है कि नहीं आपको? भाई करेगा तो देखेंगे, दावा उसका देखेंगे। लाओ। अच्छा, इनका दावा, मिर्जे का दावा देखो ना, इसका दावा अल्लाह को कब से है? देखिए बदतमीजी, थोड़ा हल्का तू से तुम होने लगा जब आपका पास दलील खत्म होने लगा। साहब अलैहि पे आने वाला ये दावा, इसकी दलील एक वही इलाही दे मुझे बस। जी, मैं आपको बताया है कि ये वही इलाही, जैसे कि हमने तमाम अंबिया के जो है हमने उनको देखा नहीं, उतरता हुआ वही को नहीं देखा, फरिश्ता उन पर उतरते नहीं देखा, हमने माना है कि हजरत वो सारे सच्चे हैं। इसी तरह हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें फरमाई हैं उनके मुताबिक मिर्जा साहब ने फरमाया कि मैं वो हूँ, मिसाल के तौर पर। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप मुझे चलें इसी का जवाब आप दे दें। आप मुझे बताएं कि क्रिश्चियन पता क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्रिश्चियन ये कहते हैं कि अभी छोड़ना नहीं, आपका एतराज सेम वही है भाई, सेम एतराज है आपका, इसलिए मैं आपको क्रिश्चियन का हवाला दूंगा। रुक जाए ना एक मिनट। अच्छा रुके, उलझाना नहीं है। आप मुझे बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोई थी वो अहमद नाम से थी। अब मुझे बताएं कि क्रिश्चियन तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, वो कहते हैं अहमद रसूल लाओ, हम मान लेंगे। तो कहाँ है वो अहमद रसूल? यार ये आपकी आदत है फरेब की, छोड़ दें आप। ये फरेब है, इस बात का सवाल मांग रहा जवाब, ये फरेब है, जवाब दे, मैं जाता हूँ उस तरफ। ये सूरह सफ में लिखा है, फरेब है। नाउजुबिल्लाह, क्या कर रहे हो, जो झूठ बोल रहे हो मौलवी साहब। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, आप फरेब कह रहे हो कुरान को। अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाह काज़िबीन। अभी मैंने आपको कहा है कि हजूर की पेशगोई हजरत ईसा ने दी है अहमद रसूल से। कुरान में आ गया है। हजरत ईसा नहीं, मेरी बात सुनो। हजरत ईसा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई दी है कि इसमहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। सूरह सफ में क्या नहीं आई? पढ़ लो यार, कुरान तो सही पढ़ लो, पढ़ लो। और यार एडा जुल्म ना करो। मैं कहता हूँ बात ईसाइयों के एतराज का मैंने इनकार किया है, वो कुरान में नहीं है। आगे बात सुने, कुरान में नहीं है। जुबानी तो वो कर रहे हैं, यार छोड़ो, जुबानी जो मर्जी करे कोई, इससे हमें क्या लगे? क्यों किया इनकार? मुझे बताओ कि अगर अभी मुझे बताओ कि अल्लाह ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब अलैहि को चार निशानी नबी ने बयान की हैं। अगर अल्लाह ने या रसूल नाम लेके कहा है कि ये मिर्जे में मौजूद हैं, मिर्जा मुराद इससे है, तो अच्छा फिर आप थोड़ा सा ना, फिर पटरी से उतर जाते हैं। आप थोड़ा सा तमीज के साथ नाम लें। देखें, आप बेशक ना माने, अलैहिस्सलाम, आप ना माने। देखें कितनी दफा ये ना घंटे से हम इसी बात पर घूमी जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं। वजह यह है कि आपके पल्ले कुछ नहीं है, खाली बर्तन की तरह। आप आए थे इधर हजरत ईसा की वो हयात साबित करने, उनको आसमान पर साबित करने। वो तो आप पहले ही मानते हैं ना, वो तो आप यहूदियों की तरह, ईसाइयों की तरह, वो तो आप पहले ही मानते हैं। जिस तरह ईसाइयों ने इनकार किया ना हुजूर का, जिस तरह ईसाइयों ने इनकार किया ना हुजूर का, ऐसे ही आप भी इनकार करते हो मिर्जा साहब का। जैसे यहूदियों ने हजरत ईसा का इनकार किया, आप भी करते हो। सेम है। लोरियों को क्या कहते हो?
क्या लोरी, क्या लोरी अच्छे बंदे, क्या हुआ उनको? ਲੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ? ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ है ਤੁਹਾਡੀ कोई? ਲੋਰੀ मुसलमान ने जेड़ा वो आपके घर से है? जी जी हाँ, लोरी मुसलमान, अगर वो क्या कहते हैं अपने आप को, वो क्या कहते हैं लोरी? यार जो भी कहते हैं, मिर्जे को नबी नहीं मानते वो। हाँ तो कोई बात नहीं, ना माने, हम उनको मुसलमान मानते हैं। देखिए मेरी बात सुन, मैं बता दूं इसका, इधर मैं बता देना यार मौलवी साहब, ताड़ को कोई ना टॉपिक है ना कोई ताड़ को दलील है ना गल है, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ, ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। सुनो जरा, लोरिये अगर आपको लोरिया, अगर अपने आप को लोरिया कहते हैं तो हम उनको लोरिया मानेंगे, अगर वो अपने आप को ईसाई कहते हैं तो ईसाई मानेंगे, अगर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हम उनको मुसलमान मानेंगे। बस हमें इससे क्या गरज है? जो वो कहते हैं, आप आए हो आप कहते हो वो मुसलमान हो, मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे इससे क्या एतराज है? मेरी कोई जगह ला रहे हो? अच्छा, मैंने कहा कि मिर्जा साहब अलैहि झूठा दावा नबूवत किया, ये भी मान जाओ। ये तो साबित करना पड़ेगा कि हजरत ईसा जिंदा हैं तो और मिर्जा साहब का दावा झूठा है। अच्छा, ये तो आपको साबित करना पड़ेगा। सच्चा है ना? आप सच्चा है ना? हमारा सच्चा इसी तरह है जैसे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा सच्चा है, हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत यूसुफ, हजरत हारून का, जिस तरह उन सब का सच्चा है, इसी तरह मिर्जा साहब का भी सच्चा है। और मौलवी साहब ताड़े पल्ले कुछ नहीं है। बात तो आए भाई है, मिर्जा साहब की भाई बयान करें। मैंने बताया है कि आने वाले मसीह इब्ने मरियम की जो सिफात हैं, जो नाम है, वो मैंने आपको हदीसों से बताए हैं, अभी बताए हैं, कुछ 4 दफा बता सका हूं। आपका इतना दिमाग नहीं है अभी, मौलवी साहब फजूल और रोजा खोले है, तुसी नाल ही उतो आ गए। छड्डो यार मौलवी साहब, और तो ਤੁਹਾਡੇ को नहीं हो पाएगा। ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ अब ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ हैं। ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ? बोलो निशानियां, बोलो। नबी अलैहिस्सलाम ने 4 जिक्र किए जो आप पढ़ रहे हैं, पूरी हैं। एक बई एक हदीस, एक आयत, बस। भाई मेरे प्यारे नबी की बात को आप क्या समझते हैं? खुद की उन्होंने, अच्छा अपने पास से कर रहे थे। नहीं सच्चा भाई, अल्लाह सच्चा के है फल से ना? सच्चा। अच्छा जी, ये जो 4 बातें मैंने की हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दी हैं भाई मिर्जा साहब को। और मिर्जा साहब का अपने, और मिर्जा साहब का कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ हुजूर का दिया हुआ है। दावा, हाँ, दावा कुछ भी नहीं है। दावा यही तो दावा है कि मेरे पर मेरा कुछ नहीं है। वो फरमाते हैं वो पेशवा हमारा जिसे नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है, सब कुछ तो तुझसे पाया, शाहिद है तू खुदाया। वो कहते हैं मैंने पाया ही सब कुछ हुजूर से है। अस्तगफिरुल्लाह, वो ये तो सारे मुसलमान ही कहते हैं। आगे बात तो बस ठीक है, आप मान गए, फिर मान गए आप। क्या माना जी आने वाला जो है उसको जो जो मिलना है वो। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि आपके जो हजरत ईसा आएंगे उन पर अल्लाह ताला अलग से अहकामात जारी करेगा। यार कैसा मकर है ਤੁਹਾਡਾ यार, ਤੁਹਾਡਾ मकर है। ओ भाई तुसी इतने डरे हुए हो कि तुसी इतने डरे हो कि वो आयत आप पेश ही नहीं कर पा रहे। आपने खुद कहा दलील मांगी, लम्बे पै गए हो। नहीं मैं दलील दे रहा हूँ, मेरे नजदीक सुनो बता रहा हूँ मेरे नजदीक वो सारी बातें जो, और भाई बताने लगा हूं आगे, जो भी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं अपने पास से नहीं की, वो चारों की चारों जो टाइटल दिए हैं वो मिर्जा साहब का दावा है, इतना ही दावा है। मिर्जा साहब का अपना कुछ नहीं है। दलील यही हजूर की हदीसें दलील है, हजूर की हदीसों को मुनकर हदीस हो। मिर्जा साहब के बारे में है, मिर्जा साहब का दावा है कि वो जो आने वाला मसीह इब्ने मरियम है वो मैं हूं। भाई ये कैसा जी मजाक है यार आपका। और भाई यही मजाक यहूदी भी कहते हैं, आपके जो क्या कहते हैं रिश्तेदार हैं वो भी यही कहते हैं, वो भी कहते हैं कि यार हजरत ईसा का दावा सही नहीं है। हजरत ईसा और हजूर ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत यहूदी सिफात इख्तियार करेगी, जैदा है कि जुत्ती दूजी जुत्ती की तरह, एक बालिश दूजी बालिश की तरह। ये हदीस है। नहीं मैं तो नहीं कर रहे। अच्छा मेरी बात सुनो ना, बदतर लोग देख रहे हैं। जो मैंने जो मांगा है ना कि मिर्जा साहब पे ये चारों चीजें पाई जाती हैं, मौलवी साहब खाप खपैया चले कोई शय नहीं, पूरी दुनिया। हाँ जी मौलवी साहब, दुनिया का कोई मौलवी किसी मां ने ऐसा अहले हदीस अहले देवबंदी बरेलवी मुशरक कवर पुजा भी होवे, भावें शिया
दीन तो बाद दियां चीज़ां लैण वाले भी होण ना, कोई भी हज़रत ईसा दा आसमान ते जाना एक अहमदी मुसलमान दे के साबित नहीं कर सकदा। ये झूठा अकीदा वे। क्यों रखिया तुसी अकीदा? फिर ये अकीदा कातों रखिया जी जदों तुहाडा अकीदा झूठा है ते अवाम नूं क्यों दस दे? अवाम नूं क्यों दस दे? दर्द कैसी हो रही है तुहानूं? जा यार, दर्द कहीं नहीं, पीड़ा किते, दर्दा किते। बस बस ले पल्ले कोई शय नहीं, पल्ले कोई शय नहीं। मांगी आपसे, आपने कहा 4 निशानियां नबीला सा जिक्र की हैं आने वाले महदी के बारे में। मैंने कहा नबीला सलातो सलाम के फरमान सच्चे। आपने कहा जी मिर्जा साहब ने कहा, वो मेरे बारे में कहा नबीला सलाम ने, वो मिर्जा साहब अपने पल्ले से खुद दावा कर दिया। मेरे ख्याल है देखें मौलवी साहब, देखें इस तरह ना यार वक्त का ज़िया होता है और सिर खपाइयां रमजान दे महीने, ठीक है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਖਪਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਲੀਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਲवी साहब, मैं आपसे ना हो पाएगा, फिर ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ बैठना ਤੇ बैठो बेशक। आप जितने दोस्त अब आप सुन रहे हैं, सुन लिया आपने इनसे, सुन लो। इनके पास कोई बात नहीं थी, कोई चक्कर नहीं थी। अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी मिर्जा गुलाम अहमद साहिब सुल्तानुल कलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे हुए फिर आज साबित, क्योंकि हमारे मोहतरम मौलवी साहिब जो कि हमेशा की तरह, इनको हम पुराना जानते हैं, इनके साथ हमारा ग्रुपों में भी वास्ता रहा, वहाँ पर भी इनका सका दोस्त का बेटा, कारी साहब का बेटा, बड़े अच्छे कारी साहब मोहतरम, बड़े प्यारी शख्सियत थे वो, ये आए और इन्होंने आकर जनाब गालियाँ गलोच किया, उधर हमें बदकलामी हमारे साथ की। और वो लड़का कहता कि मैं अपने चाचा की इन बातों पर देखते हुए मैं अहमदी होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रॉड पर भी मुझे बैठे हुए अहले सुन्नत और अहले तशरीह भाई मुझे चाहिए, जो कि मौलवी साहब के पास कोई दलील नहीं थी, इन्होंने कोई बात नहीं की, मैंने इनके सारे सवालों के जवाब दिए। मौलवी साहब चारों खाने चित और सिर्फ झूठ और झूठ सिर्फ घुमाते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, मुझे सिर्फ घुमा रहे हैं मौलवी साहब, सिर्फ कहते हैं चिट्टा झूठ। मैं जो दलील देता हूँ, मैंने इनको पहले बताया था कि जब भी मैं आपको दलील दूंगा, अब देखें मैं इनको कहता कि मैं आपको दलील दूंगा, मैंने इनको हुजूर से एक दलील दी। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद आने वाला इमामन महदीयन होगा, उसको ही मसीह इब्ने मरियम फरमाया। वो हमने कहा कि वो मिर्जा साहब हैं, तो उस पर भी हजूर की बात पर भी दलील मांग रहे हैं। इत्थे तक नौबत आ गई जे कि उलमा हुण उलमा नहीं जे रहे, तुहाडे उलमा दी हालत वेख लवो कि अपना अकीदा जिहड़ा कि 1400 साल तो घड़ी बैठे ने, इन्हां कोलों साबित नहीं जे हुंदा, सिर्फ सिवाए हसन दे किसी दी बद कलामी करन दे, इनके पल्ले कुछ नहीं है दोस्तों। तो छोड़ दो है दोस्तों, इनका खेड़ा छोड़ दो। इब्ने मरियम मर गया, हक की कसम, दाखिले जन्नत हुआ वो मोहतरम, मारता है उसको फुरका सर बसर, उसके मर जाने की देता है खबर, कोई मुर्दों से कभी आया नहीं, ये तो फुरका ने भी बतलाया नहीं। ऐ अजीजों सोच कर देखो जरा, मौत से बचता कोई देखो भला, चल दिए सब अंबिया और रास्ता, मेरे कोई नहीं साबित कर पाया। लो जी मौलवी साहब आए थे, कजबैसी हो रही है, फजूल की कजबैसी। कोई अभी भी डरूं नहीं भाजी तुसी ना साबित करना है, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਦਕਲਾਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। हाँ जी, आप बैठ के फिर म्यूट लगा लें, फिर सुने बैठ के आराम से बैठे रहे, बैठे रहे। आपको चलो दलील ही कोई नहीं भाई, ताड़े पल्ले कुरान भी कोई नहीं, ना कुछ पढ़ रहे हो, ना गल बात कोई ना कर रहे हो। हाँ मेरे पास तो हजूर की बातें सारी, मैं तो हदीसें दी, आप तो मुनकर हदीस हो गए ना, मैंने हदीस रखे है। अच्छा नाम अब आप दुआ करें, सब दोस्त दुआ कर लें जी, दुआ करा दें। अब आखिर में दुआ करा दे मौलवी साहब। नहीं आखिर पे नहीं, आप दुआ दें, आप दुआ करें, सबके सामने ऊंची बातें करनी है आपने। अल्लाह ताला मुझे और मिर्जा साहब को, सुनो मैं पहले कर दूं, पहले मेरी सुन लो, मुझे और मिर्जा साहब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफात दे जी। वाह मौलवी साहब मैं तुम्हारी रग तो वाकिफ हूं। नहीं अपनी
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। दुआ तो मांग लो, दुआ तो मांग लो, मैंने मांग ली। तलत भाई मैंने दुआ करानी है, मैंने दुआ करवानी है। दुआ अच्छा। दुआ सुन लो। पीर साहब दुआ करवाएंगे, पीर मोहम्मद अजमल साहब। ये सब दुआ दुआ करें। ये है नहीं, वो कि अगर उनके दोस्त ये दुआ एक करें, मिनट ये साथी म्यूट करें, जो मैं दुआ मुरब्बी साहब करवा है रहा ना, हूँ कि या मेरे ये- परवरदिगार कोई मौलवी पैदा कर दे, कोई मौलवी पैदा कर दे जो साबित करे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के याद हमारे सामने। हाय बोला बोल पे भाई ओ मेरी दुआ उल्टे में। बांस बरेली अल चल तुर पे जो लोग माशाल्लाह। मैं कहता हूँ मेरी बात तो सुन ले, दुआ मांगे। तुम दुआ ये मांगे देखोगे आपने, जो इन्हीं में से ठिकाना कतराते मिर्ज़ा साहब मोहब्बत अलैहि टपकेंगे, का है, फिर अल्लाह आपका गालियों भी से क्यों डरते हो, दिल जलते हैं जल जाने दो। बस वो पेशवा क्या है? हमारा जिसे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही वहाँ है। जाना नहीं वो आपने। आज शाहिदी है, वो ताज जाना नहीं मुरसली है, वो तैयब वहाँ तो- उज़मी है, उसकी सना जहाँ यही है। मिर्जा साहब अलैहि मौजूद है, अल्लाह आपको वहाँ ले जाए, जहाँ हमारे नबी जिंदाबाद। मौजूद है, अल्लाह हमें वहाँ ले जाए। गुलाम बाकी दुआ करें। अहमद की जी जी जय। आमीन आमीन। अब मिर्जा साहब और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही जगह होंगे इंशाल्लाह। और ना, आपके मुतालिक आप सुन लो, अपना सुन लो, अपना प्लीज। सुन लो यार। आपके मुतालिक तो हजूर की बड़ी बड़ी सख्त हदीसें हैं। अब मैं बयान करूंगा तो आप गालो गाल हो जाओगे, इसलिए आप रहने दो। मिर्जा साहब के बारे में रहने झूठी दो। बात करती, नबीला बोहतान रहने दो। बांध दिया। हजूर ने ना, मिर्जा साहब अब के सुने, बारे में क्या? अभी सुने, नौजुबिल्ला। अभी सुने, अब आपके नबी बारे में बोहतान ना, बांधा आपके बारे में हदीस है आपने नबीला कि सलाम पे बोहतान बांधा है। मस्जिदें खूबसूरत होंगी, आपने नबीला हिदायत से साहब खाली, बोहतान बांधा है। और जो उलमा होंगे वो कहता आसमान हूं के नबीला नीचे सलाम पे आपने जमीन बोहतान बांधा पर है। बदतरीन मखलूक होंगे, फितने वो तो है इन्हीं आप। में से उठेंगे और इन्हीं में लौट जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और एक वो जगह आप- फरमाया कि घबराहट के जमाना में, घबराहट के जमाना में, इस वक्त घबराहट का जमाना है, घबराहट के जमाना में लोग भागकर उलमा के पास जाएंगे और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जरूरत है तो कुछ कह लेना, फरमाया घबराहट के ज़माना में मेरी उम्मत के लोग भागकर उलमा के पास जाएंगे और उनको बंदर और सूअर पाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु मिर्जा अकबर। गुलाम अहमद कादियानी साहब पाक अलैहि मोहम्मद मुस्तफ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब नबियों के सरदार। और ये थी बात, नबीला कितना जो बोहतान बांधा आपने वो कौन सा ये मिर्जा साहब के बारे में नऊजुबिल्लाह नाम नहीं लिया आपने, कहा नबीला सलाम की चारों हदीसें वहां फिट होती हैं। बोहतान चले मैं दोबारा से आखिरी दफा कोशिश करता हूं। मैंने इनको कहा है कि किसी भी नबी की नाम के साथ पेशगोई नहीं है। पूरे कुरान में जो पहले नबी आता है, मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनकी रुक जाएं ना जवाब। जब ये देखिए, ये कोई तरीका नहीं यार, फजूल। मैं जब जवाब आपके पास जवाब नहीं, मैं जवाब देने लगता हूँ, आप देने भी नहीं देते फिर मुझे। जवाब नहीं, फ्रॉड इसलिए है कि चोर दरवाजे तो बनी इसराइल दे रसूल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੋ। ਉਹ ਨਬੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਲਿਆਂਦੇ ਓਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖਾਂਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ओहो वाह, ਦਰਦਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਕਿਤੇ, ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋੜ ਕਿਤੇ। बंदा जिसके किरदार ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ मफूद नहीं। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? और रसूल दा खा रहे हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ते बनी इसराइल दा रसूल ले आ रहे हो। हजूर फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझसे पहले गुजरे हुए अंबिया पर 6 फजीलतें हैं। हजूर अपनी फजीलत बयान करते हुए फरमाते हैं, मेरे लिए तमाम दुनिया को इबादतगाह बना दिया। एक मुसलमान जहाँ पर भी नमाज को पाले, नमाज पढ़ ले। मेरे से पहले 5वीं फजीलत बताता हूँ ताकि टाइम कम हो। हजूर फरमाते हैं कि 5वीं फजीलत ये है कि मेरे से पहले अंबिया अपनी अपनी कौम की तरफ आए और मेरी फजीलत उन पर यह है कि मैं तमाम दुनिया के लिए, तमाम जानों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा गया। हजरत ईसा को लाकर तुम हजूर की इस जो है हजूर की फजीलत को कम करते हो, शर्म नहीं आती? हजूर के नाम से खाते हो, हजूर के नाम पर। मिर्जा साहब के मुतालिक हजूर ने फरमाया, वा इमामुकुम मिनकुम नबीउल्लाह ईसा इब्न मरियम इमामन महदियन व हकमन अदलन व यक्सुर सलीबा। मौलवी साहब कुछ बयान न कर सके आज की मौलवी साहब के साथ। मौलवी साहब ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हुए, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ते हुए, लानत डालते हुए, और अल्लाह ताला ने तमाम लानतें इन पर डाल दी। ये हैं जी आपके मौलवी साहब। आज भी नाम लिया आपने अभी कहा
میں نے نہیں کہا میں نے میرا یہ دعویٰ ہے جھوٹا ہے، یہ بات نہیں مانے گا کبھی بھی. میرا یہ دعویٰ ہے میرا یہ دعویٰ نہیں کوئی ایسے نہیں کہنا ایسے نہیں کہنا ہمارے تو مہمان آئے خبردار اہل سنت بھی آپ کو مہمان اہل سنت بھی جھوٹا اچھا بولنے لگ گیا. بات یہ ہے جی کوئی احمدی بھائی اوپر بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا نیچے چلے جائیں. مانی بھائی دوسرے دوستوں کو اوپر اٹھا لیں. مولوی صاحب کی بات ان سے بیان نہیں ہو سکی. تھوڑا سا مانی بھائی تھوڑا سا احمدی بھائیوں کو نیچے کریں. چلے جائے پلیز. کچھ احمدی بھائی نیچے چلے جائیں رضوان بھائی کے علاوہ. اور یہ مولوی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ ہم بے شک سال بھی ایسے لگے رہے نا تو سر کی کپائی ہے سر درد ہی ہے میری صرف سر درد ہے. ثابت تو کسی کو بھی نہیں کر سکتے. بالکل نہیں ثابت ہم نے تو محترم ثابت آپ کے سامنے کیا ہے. ہم نے تو آپ کے سامنے جھوٹ ایک آیت حدیث مانگی ہے ایک میں نے حدیث تو آپ کے سامنے کسی ماں نے وہ بچہ ہی نہیں پیدا کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت کر سکے اور نہ کرے گا. مرزا کو نبی ثابت کر دے کسی ماں نے جمع ہی نہیں. ابھی بتا رہا ہوں آپ تو حضور کی بات نہیں نہ مان رہے. آپ تو جناب مولوی صاحب آپ حضور کی بات نہیں نہ مان رہے. مولوی صاحب آپ حضور کی یار ہے فضول رکھا کپیا. اللہ تعالیٰ کی تمام ایسے جھوٹوں پر لعنت ہو جو کسی نبی کا انکار کرتے ہیں اور نبی کو نبی نہیں مانتے اور جھوٹا مانتے ہیں. جیسے کہ یہود کی صفات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ڈالیں گے جو علماء ہوں گے میری امت کے علماء ہوں گے وہ ان پر لعنت ہوگی. وہ آسمان کے نیچے زمین پر بدترین مخلوق ہوں گے اور وہ بندر اور سور ہوں گے. حضور نے فرمایا تھا اور آج آپ ایک بندر اور سور کو دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس دیکھیں یہ بندر آپ کے سامنے بیٹھا ہے. یہ آپ بندروں والی کبھی اس ڈال پر کبھی اس ڈال پر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو حضور نے فرمایا تھا. ابھی آپ نے فوراً کافی بک کر لی ہے تو اس کے مطلب ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا خاموشی کے ساتھ نئے بندوں کو نیچے سے اٹھائیں. مولوی صاحب کی ہو گئی ہے بس. مولوی صاحب ہوگا بس. مولوی صاحب کے بعد ہم کچھ بھی نہیں پلے کچھ نہیں ہے آپ کے. آپ نے کہنا کیا ہے. چلے مولوی صاحب دیکھیں ہم اس کو نا پیار کے ساتھ اس بات کو نا میری جان پیارے میرے سونے مٹھو جی مٹھو. اچھا بات چلے جی آپ سے وہ کہتے ہیں اردو میں آپ سے نہ ہو پائے گا. مرزا جھوٹا ثابت وہ کر دیا میں نے. کیسے کر دیا وعلیکم السلام. ٹھہرو محترم تو رک جائیں بھی. مولوی صاحب سے اجازت لے لیں. مولوی صاحب ٹھیک ہے ہم آپ سے نا پیار سے اجازت چاہتے ہیں. آپ آرام کریں دوبارہ تشریف لائیں کبھی. ان کو ادھر ہی بیٹھنے دیں. کوئی وہ ایسے بیٹھے رہے یار. میرے بھی سر سے درد کر چڑیجیے مولوی صاحب. میرے بھی سر میں درد کرتی میں نے بیٹھنا ہے تو بیٹھے رہو. اگر تسی تشریف لے کے جانا چاہتے ہو کوئی دلیل تو ہے کوئی نہیں. دے تھلے سوئے تے صبح ہسدے ہوئے اٹھو گے. ٹھیک ہے کوئی بات ٹھیک ہے مولوی صاحب تھینک یو ویری مچ. کوئی بری لگی ہوئی گل تو معذرت ہے ساڈے لو. ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے ہم نے کوئی ایسے گستاخی کر دی. آپ بڑے ہیں ہم سے عمر میں تو معذرت ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. اب ہم اس کو ریگولر چلاتے ہیں. میں آپ کو نیچے کر دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ مولوی صاحب. چلو یار نیچے کوئی بھائی موجود ہے تو آ جائے جس نے قرآن اور حدیث سے بات کر لی ہے. مانی میں پوسٹر کیونکہ آپ مولوی صاحب تو کوئی قرآن کی آیت نہیں پیش کر سکے نہ کوئی حدیث پیش کر سکے جس سے پتہ لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں اور آسمان پر زندہ ہیں. تو ان کے بس کی تو بات نہیں. اگر اور کوئی بھائی ہے تو آ جائے نیچے سے. ڈیشنگ بھائی وہ ذرا چیک کر لینا. بہت سارے ادھر چلے گئے ہوں گے دیکھ کے. ذرا ڈیشنگ بھائی کو ذرا کوئی فون کر دے. سمجھ گئے. اوکے جی چلے یار. کوئی اور بھی دوست نیچے موجود ہیں ہمارے غیر جماعت دوست غیر احمدی بھائی تو وہ اوپر آ جائے. آواز میری زیادہ اونچی تو نہیں ہوگی تھی مانی بھائی؟ ابھی ٹھیک ہے اب صحیح ہے آواز زیادہ اونچی تو نہیں؟ میں اس کو ویسے اتارنے لگا. چلاتے ہیں یار اتنا سر کپائی. آ جاؤ نیچے سے یار. سر درد کون کرے. آ جاؤ سارے واپس یار. جو بھائی اوپر آئے تھے پہلے آ جائیں دوبارہ. اب وہ سارے نکل گئے. اپنے مولوی کی انہوں نے دیکھ لی ہے ٹکا کے ہوئی ہے آج پھر ماشاءاللہ. یوٹیوب پر بڑی ہے. یوٹیوب والوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یوٹیوب پہ چل رہی ہے میں دیکھوں ذرا یار. مولوی اتھے اڑیا آئی یوٹیوب پہ پھر آواز رکی ہے یار. یہ کیا یار اس کا مسئلہ بڑا اللہ مال ہے. ٹک ٹاک ادھر رکی ہے یار یوٹیوب والے بچارے. جی اوپر لیں مانی بھائی دوستوں کو اوپر اٹھائیں. آ جائیں بھائی دوست کوئی بھی جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں اوپر آئیں.
और अपना कोई सवाल वगैरह है? बहुत सारे दोस्त थे, किधर गए? मैं कह रहा था मानी भाई पहले उठा लो यार, अहमदी भाई ऊपर बैठे हुए थे, अब फायदा नहीं, करो। मुझे नीचे उस वक्त नहीं पता लगा। और दूसरा 6 लोग थे। देखे 300 तक हमारी ब्रॉड 300 भी क्रॉस की है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है किसी ने भी नहीं कहा। और अभी तक 1,12,000 हुए हैं, इसके अंदर से भी मेरे ख्याल में मेरे अब्बू नहीं किए और मैंने कोई बात ज्यादा किसी ने डबल टैप नहीं किया, कुछ कोई बात बहुत नहीं, कम मैं- लोगों ने मैं- किया। मैं आजकल क्या ही नहीं रहा किसी को, मैं कह रमजान है, कुछ रोजा रखा नहीं, होता है, जब ऐसी फिर पता है क्या, वो लाजमी वायरल होती है उस टाइम पे, जब ऐसे मुनाजरा हो रहा होता तो कोशिश किया करें उस वक्त कर दिया करें प्लीज। हाँ अगर हो सके तो कर दें, नहीं तो मैं क्या नहीं रहा किसी को भी। मैं कहता हूँ यार थोड़े ना, बाकी माशाल्लाह हमारे मॉड्स जिंदाबाद हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, हमारी बहनें खास तौर पे रूहीबा जी द ग्रेट। और फिर है कौन कौन मौजूद है मॉड नीचे, कौन कौन है भाई? मॉड नीचे ज़रा अपनी हाजिरी लगवाएं ज़रा, कौन कौन मौजूद है। अच्छा जाए ना दोस्त, अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा क्या कहते हैं, वोट तो हमेशा करते, लेकिन जो दूसरे भाई है अहमदी भाई, अच्छा भाई नहीं करते, मैं देखा भाइयों का नहीं होता इतना डबल टैप ना। ये मोड ही कर रहे हैं, बाकी सारे वेले ही हैं। अच्छा ये मोड की कोई मेरे ख्याल में वो अफ्तारी का भी टाइम था शायद, अफ्तारी का टाइम भी था ना यार, ये गलत टाइम पे एनर्जी आता नहीं है। होती ना उस वक्त। वो एनर्जी मेरे पास भी नहीं थी, बार सिर खपाई है भाई ये मौलवी साहब तो भाई। चलें जी, ये भाई आए, क्या नाम है? अब्बू करमानी मोहद अलमुआहिद अलमोहिद। जी, ये तो कोई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओ यार कितना आ गया यार, कितना आ गया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नाम पुठा सीधे रख के ले आता है। नहीं नाम है अबू करमानी पता है कि वो उठाते नहीं, मैं नाम चेंज करके चला जाऊं तो शायद कोई उठा ही ले। गिरा दो उसके नीचे। नहीं नहीं ना, नहीं, हम उठा लेते हैं यार। गिरा दे वैसे भी क्या ही करेंगे। अब तो हो गया, अब तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। सही बात है, अच्छा, वो आपको कमीशन मिलना तो था। मिल गया हमें, अभी क्या जरूरत हाँ है? कमीशन तो आप लोग को मिल गया, तो अब क्या ही करेंगे। अब क्या ही कमीशन फायदा तो होगा। क़यामत के दिन मिलेगा, अल्लाह ताला देगा इसका। अच्छा जी मानी भाई, यूट्यूब पर मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड खुद देखता हूँ यूट्यूब पर आ रही है कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर रुकी हुई थी यार, कोई बताता भी नहीं है। थोड़ा सा ना यूट्यूब वाले उधर पता नहीं, कल भी मैंने देखी थी तो मुझे पता लग गया था। यार, लेकिन एक वो बंदा कितना कितना करे, इधर भी देखो। अली खान 8 नंबर, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? कल भी आए थे ये भाई हमारे। हमें अभी क्या जरूरत है? कमीशन तो आप चल रहा है, शुक्र है। वो यूट्यूब वाले बेचारे देखते रहते हैं, उनका माजरत है जी आप लोगों से। अब मैं अकेला इधर भी चला रहा होता हूँ तो यूट्यूब पे भी चला रहा होता हूँ, तो रुक जाती है आप लोगों का मजा खराब मैं कर देता हूँ, मुझे इस दफा माफ कर दें। जब भी मेरी टीम पूरी होगी ना, हमारे जो डिबेटर भाई बाकी सारे मौजूद हैं, सिर्फ डिबेटर भाई मेरे आगे दोनों ना, तो या एक भी आ जाए उनमें से, तो मैं दोनों चीजें संभाल सकता हूँ, मैं तीनों भी संभाल सकता हूँ। लेकिन ये कि जब वो मौलवी की जात आती है ना, तो फिर थोड़ा सा वो उसके साथ देख कर चलना पड़ता है, वो थोड़ा ड्रामेबाजी करता है, आपको पता है मौलवी। चलें ये जितने भी जी कह रहा हूँ, माशाल्लाह कितना काम करते हैं आप तलत भाई। बस यार किसी को बताना नहीं। बस, लेकिन कमीशन भी उसी हिसाब से मिलता है फिर। कमीशन तो बड़ा मिलता है भाई, खुल के मिलता है। तो मेरी बैत में कितने पैसे मिले आपको? 2.5 लाख क्या हुआ? निकल गया। तू मारा भाई, तू मारा, क्या हो गया भाई? मेरा पिज्जा पड़ा है इधर, मैं लेकर आया था तो पिज्जा ही वहीं पे ठंडा हो गया।